آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اولیاء کی دھرتی کے مکینوں کے لیے پینے کا صاف پانی 73 سال بعد بھی خواب رہا۔ ملتان کے مکین زہر آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے لگائے 100 فلٹریشن پلانٹس میں سے 50 ناکارہ، جبکہ نواں شہر، ممتاز آباد، نیو ملتان سمیت دیگر علاقوں کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ صاف پانی بنیادی ضرورت، لیکن حکومتی اداروں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ شہر اولیاء میں صاف پانی منصوبے کے تحت 100 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ سے بیشتر بند ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب UC 43 کے مکین واسا کے خلاف پھٹ پڑے۔ سیوریج کا پانی صاف پانی میں شامل ہونے لگا۔ ہم نے واسا والوں کو کیا، بڑے چھوٹوں کو کہا ہے، بھاگ کے تھک گئے ہیں۔ ہمارا تو یہ حساب ہے کہ فوت کی ہو جائے تو کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ہم تو نہ مرنے کے ہیں نہ جینے کی ہے۔ واسا کے مطابق زیر زمین پانی کی صورتحال بھی دن بدن خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 150 فٹ بور کے ذریعے گھروں سے نکلنے والا پانی استعمال کے بھی قابل نہیں۔ 300 فٹ پر پانی قابل استعمال اور 400 فٹ پر نکلنے والا پینے کے قابل ہے۔ MD واسا کا مزید کہنا تھا کہ ملتان کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے مزید 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم تقریباً 1 ارب روپے سے کی لاگت سے واسا شہر کی آؤٹ لفٹ جتنی واٹر سپلائی کے لائنز ہیں وہ چینج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی 1 جنوری سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ شہری لائنوں کے باعث زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار بھی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آلودہ پانی پینے کے باعث شہری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے شہر اولیاء میں لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہونے کے باعث قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ ان واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فنکشنل کرنے کے حوالے سے انتظامات کرے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ صحت کی سہولیات کی جانب پنجاب حکومت کا انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ 2021 تک ہر شہری کو انصاف صحت کارڈ فراہم کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ دیدھی خان ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی اور OPD بلاک بنانے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں پناہ گاہیں اور ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں ایمرجنسی اور OPD بلاک تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ منصوبے پر 2 ارب روپے لاگت آئے گی۔ چوکی والا تحصیل تونسا سے N70 براستہ زین بھارتی اور کھڑ بزدار 122 کلومیٹر طویل سڑک کی بحالی و تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے پر 9 ارب روپے لاگت آئے گی۔ PP 299 ڈیرہ غازی خان کے اربن روڈ پیکج کے لیے سیوریج کا منصوبہ، تونسا پریس کلب کے لیے 10 لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 2021 تک ہر شہری کو انصاف کارڈ کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ رحیم یار خان میں طبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم۔ 7 ارب سے شیخ زاید اسپتال سرجیکل ٹاور کی ہوگی تعمیر۔ 500 بیڈز پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کا 3D ویو جاری۔ ہسپتال کے فیز 2 کا PC1 منظور کر لیا گیا، جبکہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان کی پرانی عمارت انتہائی خستہ حال ہو چکی تھی۔ گزشتہ سال کی بجٹ میں فیز 2 کا منصوبہ شامل کیا گیا تھا۔ اب 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے منصوبے کا PC1 منظور کر دیا گیا ہے۔ عمارت کا 3D ویو بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 4 منزلہ عمارت میں 500 بیڈز ہوں گے۔ سرجیکل ٹاور کی تعمیر میو ہسپتال لاہور کی طرز پر کی جائے گی۔ سرجیکل ٹاور میں جدید ترین آپریشن تھیٹرز، وارڈز اور ٹراما کے مریضوں کے لیے جدید ترین سہولیات میسر ہوں گی۔ جنوبی پنجاب اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پنجاب حکومت نے چولستان جیپ ریلی میلے کی اجازت دے دی۔ جیپ ریلی کورونا SOPs کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ 250 کلومیٹر کے ٹریک پر گاڑیاں فراٹے بھریں گی۔ جنوبی پنجاب اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے خوشی کی خبر سامنے آ گئی۔ بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کا میلہ سجے گا۔ گاڑیاں چولستان جیپ ریس میں فراٹے بھریں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چولستان جیپ ریلی کی اجازت دے دی گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے TDCP کی درخواست پر ریلی منعقد کرنے کی باقاعدہ اجازت دی۔ جیپ ریلی کورونا SOPs کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ جیپ ریلی کا ٹریک 450 کلومیٹر کی بجائے 250 کلومیٹر تک محدود کر دیا گیا۔ چولستان جیپ ریلی کا آئندہ سال فروری میں بہاولپور کے صحرا میں انعقاد ہوگا۔ ریلی کے دوران TDCP کا کیمپ بھی نہیں لگایا جا سکے گا۔ میوزیکل شو سمیت دیگر پروگراموں کے انعقاد کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آلودگی پھیلانے اور خلاف ورزی پر بھٹا مالکان کو جیل بھیجا جائے گا۔ ملتان کی فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کا عزم۔ DC ملتان کے محکمہ ماحولیات کو دبنگ احکامات، جبکہ زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔
डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत महकमा माहौलियात का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद, गिने खान, मोहम्मद जुबैर, मुमताज मुदस्सिर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जफर इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर इसाक हैदर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने कहा कि रिवायती भट्टे फिजा में जहर घोल रहे हैं और स्मोक का बायस बन रहे हैं। जिले में 492 भट्टों में सिर्फ 26 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। तमाम भट्टा मालकान को तमाम रिवायती भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का पाबंद बनाया जाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स महकमा माहौलियात के साथ मिलकर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 50 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मुबीन का अहसन कदम। मुल्तान की आवाम की खिदमत के लिए नादरा दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। मजीद देखिए अली रियाज की रिपोर्ट में। मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहरी 21 दिसंबर से नादरा के दफातर में 24 घंटे शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा सकते हैं। नादरा दफ्तर अली आर्केड मुल्तान नर्स कमिश्नर ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं वो इवनिंग टाइम में भी आके अपना ID कार्ड बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, निकाह रजिस्ट्रेशन कुछ भी है तो इजीली भी करवा सकते हैं। अदरवाइज ये होता था कि ऑफिस टाइम में वो आते थे तो उनकी प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। शहरियों का कहना था कि 24 घंटों के दौरान नादरा का दफ्तर खुला रहने से उनकी मुश्किलात में कमी आएगी। हुकूमत के इस ऐसा इकदाम पर शुक्रगुजार है। बड़ी अच्छी बात है, आवाम के मसाइल आसानी से हल होंगे। कुछ लोग दिन में बिजी होते हैं तो रात को आके अपना प्रोसेस आसानी से करवा लेंगे। शहरियों का कहना था कि अब इन्हें शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म हासिल करने में आसानी होगी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। सब्जियों की पेवंदकारी का पहला तजर्बा ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सब्जियों के पौधों की पेवंदकारी शुरू कर दी गई। माहिरीन डॉक्टर नजर फरीद ने कहा कि सब्जियों की पेवंदकारी का मुल्क में पहला तजर्बा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सब्जियां ज्यादा अरसा तक पैदावार भी दे सकेंगी। आम, किन्नू और बेर समेत दीगर फलदार दरख्तों के बाद पाकिस्तान में पहली बार सब्जियों के पौधों की पेवंदकारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुख्तलिफ सब्जियों पर ग्राफ्टिंग की जा रही है। जो जमीन से खुराक और पानी उठाने वाला हिस्सा है उसको रूट स्टॉक कहते हैं, वो हो जिसमें कैपेसिटी ज्यादा हो, पानी की कमी कुताई, साल्ट की कमी कुताई, बीमारियों को फेस कर सके, वो रखते हैं। ऊपर वो फसल लगा देते हैं, वो वैरायटी लगा देते हैं जो हमें पसंद है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर नजर फरीद का कहना था कि जिन पौधों का सीजन तवील और जड़ें मजबूत होती हैं, उन पर कम अरसे वाली सब्जियों की पेवंदकारी की जाती है ताकि इनसे ज्यादा देर तक पैदावार ली जा सके। कद्दू के ऊपर कर लें, तोरी के ऊपर कर लें, जिस तरह हमारा पेठा कद्दू है सारा साल चलता रहता है, उस पर कर दें। उससे क्या है कि सारा साल आपको खीरा ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अब तक कद्दू के पौधे पर खीरा और पैठा कद्दू के पौधे पर तरबूज की पेवंदकारी के तजर्बात किए गए हैं, जबकि दीगर पौधों की ग्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। लिया टिम्बर माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात की कार्रवाई के दौरान मुलजमान से लाखों रुपए की लकड़ी बरामद कर ली गई। लकड़ी से लोडेड गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। DFO अजहर अब्बास का ऐसा बताना है, यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। टिम्बर माफिया की महकमा जंगलात ने कामयाब कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मुलजमान से लाखों रुपए की लकड़ी बरामद कर ली गई, जबकि लकड़ी से लोड गाड़ी कब्जे में भी ले ली गई है। आपको आगाह करें हैं, लिया में टिम्बर माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात की जानिब से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से लाखों रुपए की लकड़ी बरामद कर ली गई। लकड़ी से लोड गाड़ी कब्जे में ले ली गई। एक अरब से ज्यादा की लागत से बनने वाला जामपुर का शर्की बाईपास तबाह। अदम तवज्जुही और बारिश के बायस बुनियादें कमजोर होने लगी। साइडें बारिश का पानी बहा कर ले गईं। आए रोज हादसात मामूल। शहरियों का हुकाम बाला से रोड की मुरम्मत का मुतालिबा। जामपुर का शर्की बाईपास तबाह होने लगा। 2013 में 1 अरब से जायद की खतरी रकम से बनने वाला ये बाईपास अदम तवज्जुही की बायस खस्ताहाली का शिकार हो गया। सड़क टूटना शुरू हो गई। अदम तवज्जुही और बारिश के बायस बुनियादी कमजोर होने लगी। साइडें बारिश का पानी बहा कर ले गई। बाईपास की सड़क टूटने से जहां शहरी परेशान है, वहीं ड्राइवर्स भी रोड की मुरम्मती न होने पर शिकवा करने लगे। भाई रोड की रपट तमाम हालत खराब है, हमारा गाड़ी नुकसान कर रहा है। बिल्कुल ऐसी रोड का हालत खराब है, बिल्कुल उसका हालत सही नहीं है। ये हमारी हुकूमत से गुजारिश है इसका कुछ काम करें। मुकामी लोगों के मुताबिक बाईपास की तामीर के दौरान इसके मयार को नहीं चेक किया गया, जिसकी वजह से ये बाईपास चंद सालों में तबाह हो गया है। शहरियों का हुकाम बाला से बाईपास रोड की मुरम्मत करवाने का मुतालिबा है।
रहीम यार खान में अब्बासिया नहर के पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों ने नया पुल तामीर करने का मुतालबा कर दिया। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान के नवाही इलाके बस्ती टिब्बी महारा के करीब अब्बासिया नहर का पुल गिरने के करीब पहुंच गया। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इलाका मकीन कहते हैं कि 7 साल कबल ही पुल की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई थी। अब पुल से गुजरते वक्त बहुत डर लगता है। जी 7 साल हो चुके हैं, ये पुल टूटा हुआ है। 2-3 बार यहाँ वाक़ये हुए हैं और भारी नुकसान भी हुए हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये पुल बना कर दिया जाए। अभी तक कोई नहीं आया, बातें सब इलेक्शन वाले दिन करके जाते हैं, लेकिन यहाँ आता कोई नहीं है, आवाम की सुनता भी नहीं है कोई। इलाका मकीन का कहना था कि 7 सालों के दौरान मुतअद्दिद हादसात रोनुमा हुए। कई ट्रैक्टर, ट्रालियां, मवेशी और रक्शे नहर में गिरे, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। पुल तो बनना चाहिए ना, सारी हुकूमत को चाहिए कि पुल बढ़ा रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल पुल छोटे होने के बायस ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ गए हैं। अगर इंतजामिया इस मसरूफ और खस्ता हाल पुल की नए सिरे से तामीर करे तो न सिर्फ इलाका मकीनों के जानी बल्कि माली नुकसान से भी उनको महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के इलाका खूनी बुर्ज चौक की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर होने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का खूनी बुर्ज चौक सड़कों की टूट फूट की वजह से इलाका मकीनों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। खूनी बुर्ज चौक मछली समेत दीगर खानों के लिए मशहूर जाना जाता है, लेकिन टूटी हुई सड़क न सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी को मुतासिर कर रही है बल्कि खाने पीने के कारोबार को भी मुतासिर कर रही है। कारोबार पे इतना असर पड़ा हुआ है, गाहक जो है ना टूट फूट की वजह से ना सवारी कोई रोक सकता है ना कोई ट्रैफिक रुकती है। ये जो है ना आवाम भी परेशान है। शहरी कहते हैं कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक का भी गुजरना होता है और अगर कभी बारिश हो जाए तो हफ्तों यहाँ पानी खड़ा रहता है। 7-8 साल हो गए ये रोड ऐसे ही है और इसकी वजह से हमारे कारोबार पे भी बहुत असर पड़ता है। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक जाम है, हैवी से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, डेली यहाँ कोई ना कोई गिर जाता है। दुकानदार कहते हैं कि इन सड़कों की वजह से हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। आला अहकाम से गुजारिश है कि इस सड़क को तामीर कराएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मियांवाली में साबका दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। मंसूबों की तकमील वक्त की अहम जरूरत है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में साबका दौरे हुकूमत में शुरू किए गए कई तरक्याती मंसूबों को मौजूदा हुकूमत नजरअंदाज किए हुए हैं। मंसूबों की तकमील वक्त की अशद जरूरत है। जहाज चौक सराब वाला रोड का काम 2017 में शुरू हुआ था। 2 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका, जबकि मंसूबा 2 साल के अंदर 10 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था। 2017 के आगाज में रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए थे, जिनमें से 1 करोड़ रुपए फेस्को को दिए गए। फेस्को ने पुराने पोल्स हटाकर नए पोल्स लगाए और 90 लाख रुपए से महकमा ज़राअत ने रोड किनारे दरख्तों की कटाई की। बकिया फंड से रोड पर पत्थर डाला गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने साल 2018-19 की ADP स्कीम में 4 लाख रुपए रखे थे। साल 2019-20 में 1 रुपए के भी फंड नहीं रखे गए। रोड की तामीर के लिए फंड बारे डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा हुकूमत को लेटर भी लिख चुके हैं, मगर फंड जारी नहीं किए गए। जनूबी पंजाब मसाइल का घर बन गया। लियाकतपुर के तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला संदा में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर के तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला संदा में सीवरेज सिस्टम नकारा, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बदबू और तापुन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मोजी इमराज जन्म लेने लगे। खानपुर में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा, तापुन फैलने से शहरी मोजी इमराज में मुब्तला होने लगे। राहगीरों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा। दुनियापुर के वार्ड नंबर 7-8 में नाकिस सीवरेज सिस्टम, ठेकेदार की नाअहली के बाइस 3 माह कबल डाली गई सीवरेज लाइनें बंद हो गई। सड़क पर जमा पानी से शहरी परेशान। शहरियों का इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम की बहाली का मुतालबा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी कोटद्दू शहर की नहर गंदे नाले में तब्दील हो गई। जानवरों की अलाइशों और गंदगी के ढेर लग गए। बदबू और तापुन ने रहायशियों का जीना महाल कर दिया। कोट मिठन का रहमशाह चौक इंतहाई तंग और हादसात का शिकार होने लगा। चाचरा शरीफ बेनजीर ब्रिज से आने वाली भारी भरकम और तेज रफ्तार ट्रैफिक की वजह से चौक पर हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने रहमशाह चौक को कुशादा करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया की गफलत, अली मुश्ताक स्टेडियम जबूहाली का शिकार। स्टेडियम 14 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। कीमती सामान चोरों की नजर हो गया।
सहूलियात न होने से नौजवानों को खेल की सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। चिराग तले अंधेरा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की अदम तवज्जोही, कम आमदनी का रोना, मगर वसाइल होने के बावजूद अमल दरामद सिफर। अमीराबाद पार्क में कैंटीन का ठेका 3 सालों से न हो सका। सरगोदा में मेला मंडी ग्राउंड की सुनी गई। रोही न्यूज की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। साल से वीरान ग्राउंड की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में जिले इंतजामिया की गफलत के बायस तफरीही सरगर्मियां मान पड़ गई थी। खेलों के मैदान भी बर्बाद होकर रह गए। तहम रोही न्यूज की निशानदेही पर इंतजामिया को होश आया और साल से वीरान पड़े मेला मंडी ग्राउंड की भी सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर 50 लाख के फंड से वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, बेंचिंग और पार्किंग समेत दीगर सहूलियत फराहम की जा रही हैं। मेला मंडी ग्राउंड की तामीर मुरम्मत और ताज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। बहुत अच्छा काम हो रहा है। इत्थे बहुत जबरदस्त सहूलियत ने सरगोदा शहर वास्ते। पहले इत्थे घट्टा मिट्टी होंदा सी जनाब, बहुत बुरे हालात सन, असीं बच्चे बुच्चे लैके नहीं सी आ सकते इत्थे। हुण बहुत अच्छा काम हो रहा, वॉकिंग ट्रैक बन रहे ने, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा। असीं मौजूदा हुकूमत दे बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब। सरगोदा शहर वास्ते उन्होंने इन्ना अच्छी सहूलियत का इंतजाम किया है, असीं बहुत मशकूर हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की गफलत के बायस अरसा दराज से ग्राउंड टूट फूट का शिकार थी। हम यहीं के रिहायशी हैं। पहले हम आते थे खेलने के लिए यहाँ पर, पहले बहुत वीरानगी होती थी। अब हम खुश हैं माशाल्लाह से, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है भाई, इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, फिर से खेलने आया करेंगे। इंतजामिया के मुताबिक नए साल के आगाज तक मेला मंडी ग्राउंड में जारी तामीराती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िली इंतजामिया सरगोदा शहरियों को तफरीह की सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक हो गई और साल से वीरान पड़े मेला मंडी ग्राउंड की तामीर व मुरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुजफ्फरगढ़ का एजाज। पाकिस्तान लेवल पर पहली बार मुनक्किद होने वाले MDK टेस्ट में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कासिम इफ्तिखार ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कासिम इफ्तिखार का कहना था कि 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, मेरी पोजीशन मेरे शहर के लिए एजाज है। मुजफ्फरगढ़ के तलबा एक बार फिर तलीमी मैदान में आ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जंग मोड़ से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म कासिम इफ्तिखार ने मेडिकल के एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान भर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कासिम इफ्तिखार ने कहा कि पोजीशन लेने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वालिदैन ने दुआएं और उस्ताद ने मेहनत की। पढ़ाई के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो एवरेज पे ऊपर मतलब दिन में मेहनत तो बहुत की है ना, 8-10 घंटे और पढ़ते थे और बाकी टीचर्स की सपोर्ट और टीचर्स की जो मतलब गाइडेंस थी उनको लेके चले और आज अल्लाह का शुक्र है इस मुकाम पे है, तीसरी पोजीशन। कासिम के उस्ताद ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में बहुत टैलेंट है, बस इसे सामने लाने की जरूरत है। कासिम जैसे तलबा ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बच्चा फ्रेश कैंडिडेट है, ये भी नहीं है कि रिपीटर हो। और इमरान खान को भी हम मुबारक देते हैं, वो नेशनल लेवल पे MD-CAT कराने में कामयाब हो गए हैं और दूसरे नंबर पे हमने पूरे पाकिस्तान में ये पोजीशन ली है। इसलिए मेरा पैगाम है सब मुजफ्फरगढ़ लोगों से और सब लोगों के लिए कि अब आप यहाँ एंट्री टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। कासिम इफ्तिखार ने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाऊंगा। कैमरामैन वसीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर औलिया में चौथी रेशम दलान मुल्तान कॉन्फ्रेंस, मुल्तान पर लिखी गई किताबों की रुनुमाई और शहर औलिया की तारीख पर भी नजर डाली गई। शायरों, अदीबों और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। 4 साल बाद मुल्तान टी हाउस में चौथी रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई। शहर औलिया की तारीख पर मुकालमा और किताबों की रोनमाई की गई। मेहमान खुसूसी साबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जाहिद सलीम गोंदल का कहना था कि मुल्तान आते हुए नई जिंदगी मिलने का एहसास होता है। रेशम दिलाने मुल्तान का नाम मेरे दिल से निकला था, जिसके बाद ये नाम तजवीज किया गया कि रेशम दिलाने मुल्तान, ये तो आज तक किसी ने नाम ही नहीं दिया। तो मैंने कहा मैं बड़ी देर के बाद मेरे दिल से निकला कि जो खसूसियात ये है इनकी वो किसी और में नहीं है। तो दूसरा मैंने कंपैरिजन किया लाहौर का कि अगर वो जिंदा दिलाने लाहौर है तो हम रेशम दिलाने मुल्तान है। सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा का कहना था कि मुल्तान मेरा पहला घर है। यहाँ के 4 दरवेशों ने मेरी जिंदगी बदल दी। इन 4 दरवेशों की कहानी अपनी किताब गुमनाम गाँव के मुसाफिर में बयान की है। गुमनाम गाँव का आखिर ये मुसाफिर जो है उसमें जो मेरा सबसे खूबसूरत पीस जो मुझे लगता है तो उसका टाइटल मुल्तान के 4 दरवेश। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि लोग तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें जिंदगी में एक दरवेश मिल जाए, उन्हें एक गुरु मिल जाए, उनको एक कोई राह दिखाने वाला मिल जाए। मुझे तो 4 मिले थे यहाँ पर।
रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, शाकिर हुसैन शाकिर, असगर नदीम सैयद, सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी, नासिर महमूद शेख, इफ्तिखारुल हसन समेत दीगर कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरका को सरायकी अजरक और शील्ड का तोहफा भी दिया गया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। खान के अरकीन असम्बली की जिला राबता कमेटी का इजलास हुआ। अमन अमान, प्राइस कंट्रोल एक्ट और कोरोना SOPs, इंसदाद स्मोग और डेंगू मुहिम का जायजा लिया गया। डेरा गाजी खान के अरकीन असम्बली की जिला राबता कमेटी का इजलास हुआ। वजीर ममलकत मौसमियाती सेहत हनीफ पताफी, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक और दीगर अरकान असम्बली, सियासी रहनुमा, डिप्टी कमिश्नर और तमाम सरकारी इदारों के अफसरान शरीक हुए। वजीर ममलकत जरताज गुल, मुशीर मोहम्मद हनीफ पताफी और चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक का कहना था कि हुकूमती इकदामात की वजह से महंगाई कम हो रही है। नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्मानों के बजाय पाबंद सलासिल किया जाए। थानों में साइलिन की तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर ममलकत जरताज गुल की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं मरियम सफ्दर किस हैसियत से इस्तीफे ले रही है। PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मौलाना फजलुर रहमान हलवे और रद्दी की बातों से निकलकर नैब को करप्शन का जवाब दें। उनका मजीद का कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, वो कुछ भी कर ले इन्हें नाकामी होगी। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। PDM के आइंदा जलसों का हाल भी लाहौर जलसे जैसा होगा। मरियम नवाज अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। अपोजिशन के जो सर्कस था वो तो आपने देखा है कि जो हैट्रिक हुआ है फ्लॉप शोज का, पेशावर से स्टार्ट हुआ, मुल्तान में था, फिर उसके बाद लाहौर में, तो बिल्कुल उनकी सियासत दफन हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा था आरिया पार होगा, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अपोजिशन का ही पार हो गया। DG खान में वजीर मुमलिकत का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को करप्शन पर जवाब देना होगा। PDM जितने चाहे इस्तीफे दे, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। कानून कहता है कि सेनेट इलेक्शन 30 दिन कबल कराया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है कि 30 दिन पहले जो आपके सेनेट का इलेक्शन होना है उसे 30 दिन पहले आप करवा सकते हैं। तो इनकी सारी सर्कस तो सेनेट के इलेक्शन के लिए रुकवाने के लिए थी। आगे से भी तो कप्तान है, जीदार है, उन्होंने कहा ठीक है आप उसको रुकवाना चाहते हैं, मैं 30 दिन पहले करवा लूं। जरताज गुल का कहना था कि इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार फलाही मंसूबों से अवाम को सहूलत पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, DG खान। अब ट्रैफिक हादसा कम होंगे। मोटरवे पुलिस ने नींद से जगाने वाला आला तैयार कर लिया, जबकि एंटी डोजिंग नामी ये डिवाइस नींद के गलबे की सूरत में ड्राइवर को जगा देती है। लेकिन कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाहरुख ने आलम इंटरचेंज पर रोड सेफ्टी मुहिम की तकरीब हुई। स्टॉल पर रोड सेफ्टी डिवाइस, नींद से जगाने वाला आला, फर्स्ट एड बॉक्स, रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स और आग बुझाने वाले आलात शामिल थे। स्टॉल लगाने का मकसद जो है वो इन रोड सेफ्टी के जो गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी रोड सेफ्टी के हवाले से अहमियत को उजागर करने की एक काविश है हमारी। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस नदीम अशरफ वड़ाइच ने मुसाफिरों को आगाही दी। उनका कहना था कि मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत के लिए मोटरवे पुलिस हमा वक्त तैयार है। नींद आने की सूरत में जगाने वाला आला और रोड सेफ्टी के आलात रियायती कीमतों पर ड्राइवरों को दिए गए। जगाने वाला आला नींद आने की सूरत में अलार्म बजाना शुरू कर देता है और इस तरह हादसे से बचा जा सकता है। ये एंटी डोजिंग डिवाइस है, मतलब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको नींद आती है, ऊँघ आती है, थोड़ा सा भी आप शेक करते हैं, सर हिलता है आपका, तो ये आपको इंडिकेट करती है कि आप जाग जाएं। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस मोहम्मद हसन भट्टी ने कहा कि मोटरवे पुलिस रोड यूजर्स की मदद के लिए पुरअज़्म है। लोगों को रोड सेफ्टी की चीजें आधी कीमत पर देंगे। धुंध के मौसम में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। एडमन ऑफिसर चौधरी तारिक नईम ने कहा कि फोग लाइट लगवाने, रफ्तार कम रखने, गाड़ियों का दरमियानी फासला ज्यादा रखने और शदीद धुंध की सूरत में सफर करने से गुरेज किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। DG खान में 11 रोजा कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला सज गया। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी और MPA अहमद अली दरेशक ने इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन उल मुल्क रिपोर्ट करेंगे।
डेरा गाजी खान के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11 रोजा कायदे-आज़म स्पोर्ट्स गाला सज गया। डिवीजन भर की बॉयज और गर्ल्स टीमों के माबैन ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, कराटे, साइकिलिंग, आर्चरी, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। वजीर मुमलिकत जरताज गुल, मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। जरताज गुल का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के खिलाड़ियों के लिए रिकॉर्ड काम किए। सीएम उस्मान बुज़दार साहब का विजन है। अगर आप हमारा हॉकी ग्राउंड देखें, उसको ऑस्ट्रोटर्फ में बनाया। आई थिंक बहुत हमारा स्पोर्ट्स में अच्छा काम हो रहा है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि जितने बच्चे हेल्दी एक्टिविटी में हमारे पास जाएंगे, वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, सीखेंगे। यहाँ पे बाकायदा कोचिंग है, एकेडमी यहाँ पे डेरा गाजी खान में बन चुकी है। उसका हमें ये फायदा होगा कि इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल वीरान रह जाएंगे और हमारे जो स्पोर्ट्स के जो वो हैं ग्राउंड है वो आबाद हो जाएंगे। स्पोर्ट्स गाला में छोटे बच्चों ने आर्चरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और कमाल महारत दिखाई। मेहमानों ने भी निशाने लगाए। आर्चरी खेलते हुए मुझे 2 साल का अरसा हो गया है। पहले मैं 10 मीटर से निशाना लगा लेती थी, लेकिन अब 20 मीटर से दूर भी निशाना लगा लेती हूँ। आज ये इधर आर्चरी के हो रहे थे कंपटीशन, तो हम अपने बच्चों को ले आए हैं। इन्हें बहुत मजा आ रहा है और ये पहले अचीवर्स भी हैं। सरगोदा से भी इन्होंने 5th पोजीशन ली है आर्चरी में। बहुत मजा आ रहा है। डीजी खान में स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। डेरा गाजी खान में अच्छी बात यह है कि इन आर्चरी के मुकाबलों में नन्हे मुन्ने प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हौसला आ रहा है कि आप भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। मुल्तान में सहाफियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्बत किरदार अदा करने के हवाले से आगाही दी गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्तान में समाजी तंजीम फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सहाफियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद की गई। सहाफियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किरदार अदा करने से मुतल्लिक आगाही दी गई। सहाफियों को मीडिया कवानीन के हवाले से भी बताया गया। 2 रोज़ा सहाफियों की तरबियती एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो है कोविड-19 से बचने के एहतियाती तदाबीर और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग और डिजिटल मीडिया को फरोग देने पर भी उस पे जो है तरबियती सेशन हुए। वर्कशॉप में सहाफियों के लिए ऑनलाइन सेशन का एहतमाम भी किया गया। समाजी कारकुन ज़ारा सजाद जैदी, फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तौकीर, अली अजहर, महविश खान, सादिया तबस्सुम और दीगर ने शिरकत की। पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग का मकसद ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें सहाफ़ी हजरात को, खासकर जिसमें मर्द और ख़वातीन जो हैं वो दोनों शामिल हैं, कि वो डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए खुद को पेंडेमिक से यानी वबा से भी महफूज रखें और अपनी जो रिपोर्टिंग है उसको भी मुतासर ना होने दें। समाजी तंजीम की जानिब से शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में मौसम सरमा की सर्द शामों में बारबेक्यू की दुकानों पर रौनकें बढ़ गईं। शहरी अपने दोस्त और फैमिलीज के साथ मौसम सरमा में मजे मजे के खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान शहर में बढ़ती हुई सर्दी के साथ बारबेक्यू की दुकानों पर रौनकों में इजाफा हो गया। दोस्तों की महफिलें बारबेक्यू पर सजने लगीं। दोस्त हो या फैमिली, सब ही ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खानों से लुत्फ उठाने के लिए बारबेक्यू दुकानों की जानिब रागिब होने लगे। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में बारबेक्यू मछली, टिक्के, ग्रीन पीस, मलाई बोटी, टिक्का बोटी और चिकन कढ़ाई खाने का अपना ही मजा है। दूर दूर से लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास बारबेक्यू ग्रीन फिश जो है लोग बड़े शौक से खाते हैं। बारबेक्यू मिसाले वाली है, फ्राई फिश है, लोग बड़ी पसंद करते हैं। और बारबेक्यू में खास तौर पे हमारी मलाई बोटी है, कबाब है। दुकानदार कहते हैं कि सर्द मौसम में शहरी मछली और बारबेक्यू टिक्के बहुत शौक से खाते हैं। ठंडे मौसम में गरम गरम बारबेक्यू खाने का लुत्फ ही कुछ और है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।